پاناما کا ہنگامہ آخری حدوں پر، الٹی گنتی شروع، صرف 4 دن رہ گئے، لیگی رہنماؤں کی جانب سے بار بار سازش کی صدائیں۔ وہ زمانے گئے جب سب کچھ پردوں کے پیچھے چھپا رہتا تھا۔ اب کٹ پتلیوں کے کھیل نہیں کھیلے جا سکتے۔ اس کو اس نہج پہ مت لے کر جاؤ کہ جو راز اس کے سینے میں دفن ہے، جو سازشیں اس کے خلاف ہو رہی ہیں، وہ عوام کو یہ بتانے پہ مجبور ہو جائے۔ آخر سازش کون کر رہا ہے؟ اپوزیشن حیران و پریشان۔ کیا جے آئی ٹی رپورٹ ریاستی اداروں میں مزید ٹکراؤ کا باعث بنے گی؟ کیا حکومت سپریم کورٹ فیصلہ تسلیم کرے گی؟ ذہنوں میں سوالات بلبلانے لگے۔ ہمارے ہاتھ صاف ہیں، ہم سرخرو ہوں گے، مظلوم بھی ہم ہیں، حساب بھی ہمارا ہی ہو رہا ہے۔ جس نے ایٹمی دھماکے کا بٹن دبایا اسی کو احتساب کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم کی تاجکستان سے واپسی پر طیارے میں صحافیوں سے گفتگو، بولے کہ پاناما کیس کے فیصلے کا انتظار ہے، عوامی حمایت ہمارے ساتھ ہے۔ 2014 کے دھرنوں کو دیکھا، لاک ڈاؤن بھی دیکھ لیا، مخالفین ہر سازش میں شریک رہے، ان سے نمٹ لیں گے۔ نواز شریف کے مخالفین پر لفظی وار، کہتے ہیں پاناما کیس کے بعد حریفوں سے بات کی، مل کر ٹی او آرز بنانے کی پیشکش بھی کی، لیکن ان کے عزائم تو کچھ اور ہی ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کیا سازش ہے جی؟ نام لینا، کیا فوج سازش کر رہی ہے آپ کے خلاف؟ کیا سپریم کورٹ سازش کر رہا ہے؟ قوم جواب چاہتی ہے، ڈرامے نہیں۔ حکمران جواب دینے کے بجائے جھوٹ بول رہے ہیں، چوری چھپانے کے لیے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت پر عمران خان کی گولہ باری، کہا کہ پورے خاندان نے مل کر ڈاکہ ڈالا۔ کپتان بولے کہ سپریم کورٹ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، عوام عدالت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جمائمہ 21 سال کی لڑکی مسلمان ہو کے پاکستان آئی، انہوں نے پوری کیمپین اس کے خلاف چلائی، وہ یہودی لوٹی۔ جمائمہ مسلمان ہو کر پاکستان آئی، نون لیگ والے کم از کم گوگل ہی کر لیں کہ وہ یہودی تھی یا عیسائی۔ اسحاق ڈار کو جمائمہ کے خلاف بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کپتان پھٹ پڑے، بولے جمائمہ پر ناقابل ضمانت کیس بنوایا گیا، مگر ہم نے رونا پیٹنا نہیں ڈالا۔ آصف علی زرداری کے ایک تیر سے 3 شکار، نواز، عمران اور مشرف پر تاک تاک۔ بولے میاں صاحب آپ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا، کرکٹ کھیلنے اور پاکستان چلانے میں بڑا فرق ہے۔ مشرف ایک دن جیل جانے کو تیار نہیں، دبئی میں ٹھیک رہتے ہیں، یہاں پسلی میں درد ہو جاتا ہے اور خود کو کمانڈو بھی کہتے ہیں۔ میاں صاحب آپ کے خلاف سازش کون کر رہا ہے؟ عدالتیں تو کر نہیں سکتی، کیا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے؟ خورشید شاہ کا سوال۔ کہ وزیر اعظم کہتا ہے کہ سازش ہو رہی ہے، تو کون کر رہا ہے؟ کس پہ الزام ہے؟ ادارے کر رہے ہیں، جو ادارے کر رہے ہیں تو بتاؤ۔ بولے اگر آپ آصف زرداری سے ڈرتے ہیں تو انہیں بتا دیں، ورنہ کم از کم فضل الرحمان کو ہی بتا دیں، تاکہ پی پی دھرنے کی طرح جمہوریت کے لیے ڈٹ جائے۔ جے آئی ٹی فیصلہ کر چکی ہے، جو چیز اچھی نہیں لگتی وہ کتابچے میں نہیں ڈالیں گے۔ جے آئی ٹی کچھ لوگوں کو سلطانی گواہ بنانا چاہتی ہے، ترجمان وزیر اعظم ہاؤس مصدق ملک کا الزام۔ کیا آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ پہلے سے ہے؟ یہ جواب ہے جو سوال کی تلاش میں ہے، یا کوئی سوال ہے جس کا جواب آپ تلاش کر رہے ہیں؟ دانیال عزیز بولے پارا چنار میں ایک اشتہاری کو کیسے پروٹوکول دیا گیا؟ آپ دیکھ لیں یہ قیدی آ رہے ہیں یہاں پر، یہ آپ دیکھیں یہ قیدی آ رہے ہیں یہاں پر، یہ حالت ہونی چاہیے تھی عمران خان۔ جو ڈان اخبار لکھتا ہے کہ ایک ایم پی اے کو ہتھکڑیاں نہیں لگی، تو اس ایم این اے صاحب کو کوئی سونے کے نوالے کھلائے جانے۔ وزیر اعظم کے صاحبزادے حسین نواز جے آئی ٹی کے سامنے پیشیاں مکمل کرنے کے بعد قطر پہنچ گئے۔ قطر ایئر لائن کی پرواز QR615 سے آج صبح روانہ ہوئے تھے۔ جمائمہ نے 4 کروڑ 84 لاکھ روپے سے زائد کی رقم 10 باریوں میں راشد خان کو ٹرانسفر کی۔
बनी गाला की खरीदारी के लिए एडवांस रकम खुद दी, बाकी जमाइमा से उधार ली गई। इमरान खान ने नाअहली केस में बनी गाला की मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की नाअहली केस की समाअत। कप्तान के वकील ने जवाब जमा कराने के बजाय फिर एतराजात उठा दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बरहम बोले 2.5 साल से जवाब नहीं दिया, ऊपर से हमें धमकियां भी दे रहे हैं। क्वेटा शहर में कत्ल की कई वारदातें, शहर में टारगेट किलर्स दंदनाने लगे। 2 घंटे में फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में बीएनपी के मकामी रहनुमा भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की सुई, कहान और सिब्बी में कार्रवाइयां, 1 दहशतगर्द हलाक, 5 ठिकाने मलिया में। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत के परवाने बुरहान वानी की पहली बरसी से पहले काबिज इंतजामिया बौखलाहट का शिकार। वादी में इंटरनेट बंद, हुर्रियत रहनुमा घरों में नजरबंद। पाकिस्तान की भारतीय मजालिम की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मकबूजा वादी में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की तहकीकात का मुतालबा। कराची वाले हो जाएं होशियार, खबरदार। शहर में एक बार फिर दिमाग खाने वाला जरासीम निगलेरिया सर उठाने लगा। गुलबर्ग और केडी स्कीम में निगलेरिया वायरस का इंकिशाफ। खतरनाक वायरस ने 2 जिंदगियां निगल ली। पानी में क्लोरीन नहीं, सेवरेज लाइन भी पीने के पानी में मिल रही है। इंसदादे निगलेरिया कमेटी की रिपोर्ट जारी कर दी गई। सानह अहमदपुर शर्किया के 2 मजीद जख्मी दम तोड़ गए। मरने वालों की तादाद 216 तक जा पहुंची। हादसे के शिकार ऑयल टैंकर का लाइसेंस खत्म हो चुका था। वजारत पेट्रोलियम का लाहौर हाई कोर्ट में जवाब, अदालत ने ऑयल कंपनी को तलब कर लिया। डॉलर की कद्र में अचानक इजाफा हैरान कुन था। मामले की तहकीकात कराई जाएंगी। वजीर खजाना की बैंक सरबराहान के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि स्टेट बैंक के गवर्नर की तैनाती का फैसला आज हो जाएगा। इजलास में डॉलर को 105 रुपए से 107 रुपए के दरमियान रखने पर इत्तेफाक। लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल मेहरबान। तेज हवाओं और काली घटाओं के साथ छमाछम बारिश। मौसम सुहाना हो गया, गर्मी का जोर भी टूट गया। थर की बाहिम्मत और बुलंद हौसला खवातीन गुर्बत से लड़ने मैदान में आ गईं। घर की गाड़ी चलाने के लिए डंपर चलाएंगी। कोयले की कानों में काम करने के लिए तैयार। पैसे कमाएंगी और घर वालों का मुस्तकबिल खुशहाल बनाएंगी। पाकिस्तान के पहले प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने एक और इंटरनेशनल फाइट जीत ली। WBC रैंकिंग फाइट में पनामा के बॉक्सर को दूसरे राउंड में नॉकआउट करके नंबर 1 पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर ली। एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियन मोहम्मद सज्जाद और एशियन चैंपियनशिप की रनर अप पाकिस्तानी टीम वतन वापस पहुंच गई। एयरपोर्ट पर स्नूकर फेडरेशन के ओहदेदारान ने इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। आज के अहम मौज़ूआत ये हैं। कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते और वो आईन और कानून और सिविलियन बालादस्ती के लिए खड़ा है। नाम लेना, क्या फौज साजिश कर रही है आपके खिलाफ? क्या सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रहा है? वजीर आजम कहता है कि साजिश हो रही है, तो कौन कर रहा है? अदारे कर रहे हैं। जो अदारे कर रहे हैं तो बताओ ये कैसे हो गया, क्या हुआ, हो क्या गया है? इसके
इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि भारत ने कश्मीर में कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और पाकिस्तान के पहले प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने एक और इंटरनेशनल फाइट अपने नाम कर ली है। इसके अलावा भी बहुत सी अहम खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले अली हमारी टॉप स्टोरी। बिल्कुल, जैसे जैसे JID रिपोर्ट की डेडलाइन करीब आ रही है, वज़ीर-ए-आज़म समेत नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से साजिश के जुमले बार बार सामने आ रहे हैं, लेकिन ये साजिश कौन कर रहा है, कोई भी अपने मुंह से नाम लेने को तैयार नहीं है। अब तो अपोजिशन भी हुकूमत से पूछ रही है कि बताएं कि साजिश कर कौन रहा है। वो जमाने गए जब सब कुछ पर्दों के पीछे छुपा रहता था। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते। 10 जुलाई 2017 को पनामा लीक्स की तहकीकात करने वाली JIT सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रही है। ये डेडलाइन जूं करीब आ रही है, हुकूमती ऐवानों में साजिश की आवाजें जोर पकड़ रही हैं। खुद वज़ीर-ए-आज़म तहकीकाती अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। JIT की तारीख जो है वो सबके सामने है, आप सब लोगों के सामने है। ये व्हाट्सएप से शुरू होती है या उससे पहले से शुरू होती है, अभी तक चल रही है। ये वज़ीर-ए-आज़म के बच्चों समेत नून लीगी रहनुमाओं की भी एक ही गर्दान है कि जाल बुना जा रहा है। उसको इस नहज पे मत लेकर जाओ कि जो राज उसके सीने में दफन है, जो साजिशें उसके खिलाफ हो रही हैं, वो अवाम को ये बताने पे मजबूर हो जाए। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर कोर्ट केस खत्म हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन चालू है और इल्जाम ढूंढा जा रहा है। ये मुकदमा कानूनी नहीं, ये एहतसाब का मुकदमा नहीं, ये इक्तदार तक पहुंचने वाले का लिए मुकदमा बनाया गया है। इन तमाम दावों के बाद यही सवाल हर जबान पर है कि आखिर वो कौन सी कुव्वत है जो हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रही है और क्यों कर रही है। एक जानिब इमरान खान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो वाज़े करे कि इसका इशारा किसकी जानिब है। मैं इनसे पूछता हूँ, क्या साजिश है जी? नाम लेना। क्या फौज साजिश कर रही है आपके खिलाफ? क्या सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रहा है? तो दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने तो इस लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट करने की भी कोशिश की है कि वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि साजिश हो रही है, तो कौन कर रहा है, किस पे इल्जाम है? अदारे कर रहे हैं, जो अदारे कर रहे हैं तो बताओ। JIT को खुद आला अदलिया ने तश्कील दिया। टीम में पाक फौज की भी नुमाइंदगी शामिल है। तमाम अपोजिशन जमातें भी JIT पर एतमाद का इजहार कर चुकी हैं। इस सूरत हाल के बावजूद हुकूमत की जानिब से JIT की साख पर सवालात उठाना आखिर किस जानिब इशारा कर रहा है? क्या हुकूमत आला अदलिया के फैसले को कबूल करेगी या फिर ये फैसला रियासती इदारों और हुकूमत के दरमियान मजीद तनाव का बाइस बनेगा? इसका जवाब भी पनामा केस के फैसले की तरह इंतहाई मुश्किल है। उधर इमरान खान कहते हैं कि कौम शरीफ खानदान से करप्शन का जवाब चाहती है। नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ की बारी भी आने वाली है। उनका मजीद कहना था कि इसहाक डार ने जमाइमा से मुताल्लिक झूठ बोला। इदारों को धमकियां देने वालों के खिलाफ पूरी कौम एक कॉल पर बाहर आ जाएगी। आज आपसे इनको चैलेंज करता हूँ, ये जो आपने कल कोशिश की ना लोग निकालने की, आप देखेंगे कौम कैसे निकलेगी। एक कॉल की इंतजार कर रही है कौम। JIT की हतमी रिपोर्ट का काउंटडाउन शुरू होते ही जहां नून लीगी गरज रहे हैं, वहीं अपोजिशन का लहजा भी इंतहाई सख्त हो चुका है। इमरान खान ने हुकूमत को मुखातिब करके कहा कि ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। आपके खानदान ने मिलकर चोरी की है, आप 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं, और ये जो ड्रामे कर रहे हैं ना आप सारे मिलके, ये जो इंडियन फिल्म के ट्रेजेडी सीन्स बता रहे हैं वहाँ बाहर, ये कोई पाकिस्तानी इससे मुतासर नहीं। हम जवाब चाहते हैं, कौम जवाब चाहती है, ड्रामे नहीं चाहती। ड्रामाबाज शरीफ की भी बारी आएगी। उसने खुद ही कहा था नाम बदल दो अगर बिजली ना आए 6 महीने में, 4 साल हो गए। इमरान खान ने कतरी शहजादे को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। ये कतरी 200 अरब रुपए का नवाज शरीफ ने इसको पोर्ट कासिम का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। 200 अरब रुपए का सिंगल बेड, पोर्ट कासिम का सिंगल बेड है, यानी बिडिंग भी नहीं करवाई। तो तब तो कतरी यहाँ आया होगा, उसको कोई मसला नहीं हुआ। ये जो तलोर मारने आता हमारी, तब तो कतरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बताने के लिए कि जनाब मनी ट्रेल बता दें कतरी साहब, उसके लिए जनाब हम वहां जाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की फंडिंग का दिफा करते हुए कहा कि शौकत खानम हॉस्पिटल का खसारा
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भेजते हैं, जिसे गैर मुल्की फंडिंग का नाम दिया जा रहा है। बकौल इमरान खान, उनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस सियासी बुनियाद पर बनाया गया, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। एक तरफ हुकूमत को JIT का सामना है तो दूसरी तरफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बराह रास्त हुकूमत पर तनकीद की है और कहा है कि नवाज शरीफ सिर्फ सरिया बेचना जानते हैं, हुकूमत चलाना उनके बस का रोग नहीं है। खिपरों में कारकुनों से खिताब में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि मियां नवाज शरीफ शेर बने, अगर आपके साथ साजिश हो रही है तो आप बर्दाश्त करें। जब पहले साजिश हो रही थी तो हमने आपका साथ दिया था। उन्होंने नवाज शरीफ को ताना भी दिया और कहा कि मियां साहब को मुल्क चलाना नहीं आता, ये हमारी नकल करते हैं, लेकिन नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। और अब भी ये गंदे अंडे छोड़ रहे हैं, इसकी आप फिक्र न करो, मेरे पास 10 है उनकी जगह पे। मसला वो था जब वो बैठे थे, इसलिए कि उन्होंने डिस्ट्रिक्टों पे कब्जा किया हुआ था कि ये टिकट भी मेरी है, वो भी मेरी है, ये भी मेरी है। ये जितने जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास उतने रिजर्व में है जो इनकी जगह पे आएंगे। साबिक सदर ने कहा कि पाकिस्तान की डोरें इन बेवकूफों के हाथों में हैं। ना ये CPEC को समझते हैं, ना चीन से हमारे ताल्लुक को। ये CPEC को सिर्फ दो रवैया सड़क समझते हैं। बॉलिंग, बैटिंग और मुल्क चलाने में बहुत फर्क है। और आज भी मुझे इसी बात का खौफ है कि पाकिस्तान की डोरें इन बेवकूफों के हाथ में हैं। ये सरिया बेचना जानते हैं, हुकूमतें बनाना नहीं करते, हुकूमत चलाना नहीं जानते। आसिफ अली जरदारी ने परवेज मुशर्रफ पर भी कड़ी तनकीद की और कहा कि खुद को कमांडो कहते हैं और एक दिन जेल जाने को तैयार नहीं। दुबई जाकर बैठ गए, वक्त आएगा तो हम बताएंगे कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है। उधर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि JIT कतर जाने के बजाय कोई मसूद महमूद तलाश कर रही है। लगता ऐसा है कि JIT फैसला कर चुकी है और अब किताबचा तैयार किया जा रहा है। दानियाल अजीज और मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के सरकारी प्रोटोकॉल को तनकीद का निशाना बनाया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम के तर्जुमान मुसद्दिक मलिक का कहना था कि पनामा केस में JIT कुछ लोगों को सुल्तानी गवाह बनाना चाहती है। ये लोग वादा माफ गवाह बनाने के बजाय कतर क्यों नहीं जा रहे? तो ये सवालात आप कतर से क्यों नहीं पूछ रहे? क्या आपके जहन में कोई खाका पहले से है? ये जवाब है जो सवाल की तलाश में है, या कोई सवाल है जिसका जवाब आप तलाश कर रहे हैं? मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हुसैन नवाज की तस्वीर नामालूम इदारे के नामालूम शख्स ने लीक की। क्या हमने इस इंसाफ के लिए मिठाई बांटी थी? इसके दो ही मकासद हो सकते हैं। या तो फैसला आप कर चुके हैं JIT और अब आप एक किताबचा तैयार कर रहे हैं जो उस फैसले तक जा सके, और जो चीज आपको सूट नहीं कर रही वो आप नहीं उसके अंदर डालेंगे वो चैप्टर, और या आप 60 दिन खत्म होने के बाद एक्सटेंशन मांगेंगे। दानियाल अजीज ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि पारा चनार में एक इश्तिहारी को कैसे प्रोटोकॉल दिया गया। ये आप देख रहे हैं, ये कैदी आ रहे हैं यहाँ पर, ये आप देखें ये कैदी आ रहे हैं यहाँ पर। ये हालत होनी चाहिए थी इमरान खान। जो डॉन अखबार लिखता है कि एक MBA को हथकड़ियां नहीं लगी, तो इस MNA साहब को कोई सोने के नवाले खिलाए जाने हैं कि उनको हथकड़ियां नहीं लग सकती इमरान खान को। इमरान खान साहब पारा चनार पहुंच गए तो उनको नहीं पता था कि ये इश्तिहारी है 780A का, जो खुद नेशनल एक्शन प्लान चलाने की बातें एपेक्स कमेटी सिंध में मीटिंग हो रही है, लेकिन यहां पर एक इश्तिहारी को जो है वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मरियम औरंगजेब ने भी एक बयान में कहा है कि मरियम नवाज किसी सरकारी प्रोटोकॉल में JIT नहीं आई। उनके साथ घर वालों की प्राइवेट गाड़ियां आईं। बेटियों की इज्जत करने वाले इसी तरह बेटियों के साथ आते हैं। कराची से अहम खबर सामने आ रही है कि सिंध असेंबली की नई इमारत MPA हॉस्टल की तामीर और फंड्स में करोड़ों रुपए की करप्शन मंजर आम पर आई है, जिस पर महकमा एंटी करप्शन ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सवाल से मजीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद, माजी में हमने देखा है करप्शन के बहुत से केसेस मंजर आम पर आए हैं, रोज रोज आए हैं। इस मर्तबा बताइएगा करप्शन के किरदार कौन कौन से हैं जो मंजर आम पर आए हैं, पुराने हैं या नए हैं? जी बिल्कुल, देखें सिंध असेंबली में
بڑے پیمانے پر مختلف چیزوں میں جو ہے کرپشن کا انکشاف ہوا ہے. اینٹی کرپشن اسپیشل سیل نے اس حوالے سے جو ہے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. اینٹی کرپشن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ خود اسمبلی کے کچھ افسران نے اینٹی کرپشن کو یہ شکایات کی تھی, جس پر اینٹی کرپشن نے 3 سرکاری افسران کو نوٹسز جاری کیے اور ان کو جو ہے بیان ریکارڈ کرنے کے لیے طلب کر لیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے اینٹی کرپشن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سیکرٹری اسمبلی, اسپیشل سیکرٹری, ایڈیشنل سیکرٹری, پروجیکٹ ڈائریکٹر سمیت مبینہ طور پہ جو دیگر افسران ہیں وہ اس کرپشن میں جو ہے ملوث ہیں. اور کرپشن سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ 2013 سے اب تک جو ہے گریڈ 7 سے 19 تک جو ہے نوکریاں جو ہے رشوت کے بدلے جو ہے بانٹی گئی ہیں, اور کسی بھی بغیر کسی انٹرویو اور تشہیر کے یہ نوکریاں اور تقرریاں جو ہے کی گئی ہیں. جبکہ اسمبلی کی جو نئی عمارت بن رہی ہے اور جو MP ہاسٹل بن رہا ہے اس کی تعمیراتی جو پروجیکٹ ہے اس میں جو ہے کروڑوں روپے کی کرپشن جو ہے کی گئی ہے. بتایا گیا ہے کہ تو یہ پروجیکٹ جو ہے 2 ارب 70 کروڑ کا تھا, لیکن یہ اب تک جو ہے 11 ارب 40 کروڑ سے زائد کا جو ہے پہنچ گیا ہے. اور افسران کی جانب سے جو ہے 2016 تک جو ہے 5 ارب سے زائد رقم جو ہے ٹھیکیدار کو دی گئی, جس میں سے 30 سے 40 کروڑ بتایا جا رہا ہے کہ 30 سے 40% جو ہے کمیشن کے طور پر رشوت کے طور پر. سندھ میں ایک بار پھر کرپشن کی آواز آ رہی ہے, کرپشن کا شور ہے. اینٹی کرپشن سیل نے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور سندھ اسمبلی کی نئی عمارت MP ہاسٹل کی تعمیر میں خرد برد سامنے آئی ہے. سعود بن مرتضیٰ رپورٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. نیوز شو میں ابھی ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے جب کیا کر رہی ہے. اور پل سے باہر کس نے مال کمایا لیکن بتایا نہیں. ویلکم بیک. آپ کو خبر دیں کہ JIT حتمی رپورٹ پیش کرنے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہے اور اب اس کے پاس صرف 4 روز باقی رہ گئے ہیں. آج بھی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا اجلاس ہوا جس میں لندن اور دبئی سے حاصل کی جانے والی اضافی دستاویزات کا جائزہ لیا گیا. JIT کے سر پر بھی وقت کی تلوار لٹک رہی ہے اور 10 جولائی کے قریب آنے سے جہاں سیاسی رہنماؤں کے لہجے تلخ ہو رہے ہیں وہیں JIT بھی مسلسل مصروف ہے. اسلام آباد میں جوڈیشل کمیشن میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا اجلاس واجد ضیاء کی سربراہی میں ہوا. ذرائع کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں جمع کرانے کے لیے رپورٹ کی تیاری شروع کی جا چکی ہے. ٹیم نے شریف خاندان کی جائیداد اور کاروبار کے حوالے سے لندن اور دبئی سے اہم دستاویزات حاصل کر لی ہیں. یہ دستاویزات شریف خاندان کی جانب سے فراہم کردہ شواہد سے اضافی ہیں. ان کے جائزے سے JIT رپورٹ کو منطقی نتائج تک پہنچنے میں مدد ملے گی, جبکہ مزید کسی فرد کو پوچھ گچھ کے لیے بلانے پر بھی مشاورت کی جا رہی ہے. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. ابھی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعظم کے صاحبزادے حسین نواز قطر پہنچ گئے ہیں. وہ آج صبح قطر ایئر لائن کی پرواز QR 615 سے گئے تھے. تاہم وہ کس سے ملاقات کریں گے اور ان کا مزید کیا یہ ابھی تک واضح نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں, بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ نااہلی کیس کی, جس میں عمران خان کا کہنا ہے کہ بیرون ملک کمائی گئی آمدن کو پاکستان میں ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ بنی گالا پراپرٹی کے لیے ایڈوانس انہوں نے خود دیا, باقی رقم انہیں جمائمہ نے ادھار دی تھی. سپریم کورٹ میں نااہلی کیس کی سماعت کے دوران عمران خان نے اضافی دستاویزات جمع کرا دی ہیں, جن میں جمائمہ خان کی جانب سے عمران خان کو بھیجی گئی منی ٹریل شامل ہے. ساتھ ہی عمران خان کا کہنا تھا کہ بیرون ملک کمائی گئی آمدن پر ٹیکس لاگو ہوتا ہے, نہ ہی اس رقم کو پاکستان میں ظاہر کرنا ضروری ہے. اضافی دستاویزات میں بنی گالا پراپرٹی خریدنے کے لیے جمائمہ سے راشد علی خان کو دی جانے والی رقم کی تفصیلات بھی موجود ہیں, جس کے مطابق 4 کروڑ 84,48,000 روپے 10 اقساط میں راشد خان کو ٹرانسفر کیے گئے ہیں. بنی گالا کی ایڈوانس رقم عمران خان نے خود جمع کروائی, جبکہ باقی رقم جمائمہ سے ادھار لے کر پاکستان بھجوائی تھی. عمران خان نے کہا کہ 2002 کے کاغذات نامزدگی میں ادا کی گئی رقم کو ظاہر کیا گیا ہے. عمران خان کے خلاف نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی کی متفرق درخواستوں پر سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 11 جولائی کو سماعت کرے گا.
उधर अभी तक इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस में जवाब जमा नहीं कराया है और इस पर समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गुस्से का भी इजहार किया। बिल्कुल, और कहा कि एक तो 2.5 साल से जवाब नहीं दिया और अब धमकियां भी दी जाती हैं। केस की समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। अब आपको खबर दें कि मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज डॉलर की कीमत में अचानक इजाफा हो गया था और अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। आज वफाकी वजीर खजाना ने इसका नोटिस लिया और कहा कि अचानक इजाफा उनके लिए भी बहुत हैरान कुन था। मामले की तहकीकात कराई जाएंगी। सिर्फ एक रोज में मुल्क की 9 साला तारीख में रुपए की कदर में सबसे बड़ी गिरावट। इस अमल के पीछे कौन लोग मुलविस थे? वजीर खजाना इसहाक डार ने डॉलर की कीमत को पर लगने के बाद बैंक सरबराहान के साथ मुलाकात की। इजलास के बाद डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे को साजिश करार दिया। तफसील से इंक्वायरी होगी, काफी फैक्ट्स आज पता चले हैं, काफी लोगों ने अपनी रिपेंटनेस और अपनी अफसोस का इजहार किया है जो हमारे मौजूद सदूर हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन आए थे। इसहाक डार समझते हैं कि डॉलर की कीमत में इजाफा चंद लोगों और इदारों के दरमियान मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ। आपके जो अदारे हैं उनको अपना अपना फाल रोल अदा करना चाहिए। आपके 8-9 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट के बावजूद अगर आपके रिजर्व आज भी अल्लाह के फजल से 21 बिलियन डॉलर हैं तो हमारी टीम ने परफॉर्म किए तो है ना। इसहाक डार के नोटिस के बाद इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 74 पैसे सस्ता हो गया और 105 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 106 रुपए 50 पैसे पर आ गया। लेकिन वजीर खजाना ये भी तो बताएं कि 2 माह से मुल्क में स्टेट बैंक का मुस्तकिल गवर्नर नहीं और मरकजी बैंक के मामलात आर्जी बुनियादों पर क्यों चलाए जा रहे हैं? क्या कुछ अनासिर ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का फायदा उठाया या डॉलर महंगा करने के पीछे सियासी अजाइम कार फरमा है? रुपए की कदर गिराने में मुलव्विस अफराद की निशानदही और मुनासिब कार्रवाई के ऐलान पर फौरी अमल दरामद की जरूरत है। आपको अपडेट करें कि अहमदपुर शर्किया के अलमनाक सानहे में झुलसने वाले मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए हैं। जाँ बहक अफराद की तादाद 216 तक जा पहुंची है। जिना अस्पताल लाहौर में मजीद 5 अफराद की स्किन ग्राफ्टिंग कर दी गई है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने तहकीकात के लिए ऑयल कंपनी के जिम्मेदार अफसर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। अहमदपुर शर्किया में ऑयल टैंकर के होलनाक धमाके को कई रोज गुजर गए, लेकिन मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज जख्मियों की हलाकतों के तकलीफ दे लम्हात जारी हैं। नश्तर अस्पताल मुल्तान और जिना अस्पताल लाहौर में मजीद 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सानहे में झुलसने वाले 48 अफराद अब भी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। तहसील हेडक्वार्टर अहमदपुर शर्किया में 8, बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में 21 और नश्तर अस्पताल मुल्तान में 14 अफराद को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जिना अस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज 5 अफराद की स्किन ग्राफ्टिंग कर दी गई। डॉक्टर्स के मुताबिक चंद रोज में जख्मियों की जिल्द की अफजाइश हो जाएगी। तहम 2 मरीज अब भी इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ज़ेरे इलाज हैं। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट में वजारत पेट्रोलियम के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑयल कंपनियों को तरसील के लिए हिफाजती इक़दामात की हिदायत की जाती है, लेकिन हादसे के शिकार टैंकर का लाइसेंस खत्म हो चुका था। अदालत ने कंपनी अफसर को भी तलब कर लिया है।